Meenakshi, thank you for coming to Soho. बर्थडे वाला थैंक यू हैगा जी हैगा Thank जी you. It is such a pleasure hosting you today. Seriously, It's a Punjab Bandh. it's a फिर भी Punjab तुसी Bandh. हैं It's a तुसी Punjab Bandh, guys. you managed to reach here and it's such a delight. आज तो मुझे था 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई आज Lovely. कुछ भी हो जाए मैं तुषार से मिलूंगी And you know what? It is so heartwarming to even realize and know that we have met some 22 years ago. And क्या मजा आ रहा है because we connected on that topic. ये किसी को भी नहीं पता होगा आई थिंक मेरे जो हार्डकोर फैंस हैं जिन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है हाँ. मेरे जो रेडियो के कोलीग्स हैं जिन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता है ये किसी को भी पता नहीं होगा जो तुषार को पता है ये मुझे भी नहीं पता था जो तुषार को पता है तुषार आप बताएंगे या मैं बताऊं So apparently we both have worked together. I was there in my summer holidays. For 2 months I worked in a call center just to understand, see the vibe, and meet new people. And I met RJ Meenakshi there. That time I was not RJ Meenakshi. Yeah. And वहाँ पे 2 महीने हमने इकट्ठे काम किया. We probably continued a few more months. Yeah. And that was an interesting time. I'm talking about in my BCom holidays. That's right. So May, June, I think छुट्टियां थी, and I took this opportunity. I used to work. Yeah. So I'll tell you, I have worked in every vacations. So I used to work in every vacation. Yeah. So every year I did something different. Okay. In my first year, I sold Gossens के ACs. अच्छा. For 2 months. अच्छा. So any ACs बिकते थे, I used to get commission. Okay. So on my bike, I used to go and travel and book orders. The second year, I used to sell HSBC के credit cards. Oh. So my commission was getting the applications form filled. And my third year में जो 2 महीने की छुट्टी थी, I worked in this call center for 2 months and where we met. My God, और पता है मेरे को आज तुषार ने बताया कि हम सेम कैब में जाकर इकट्ठे जाते थे वर्क पे और बाय द वे मैं इंटरनेशनल कॉल सेंटर में मेरा नाम था वेरोनिका पार्कर मीनाक्षी नहीं था एंड तुषार का नाम था स्टीवन. हाय स्टीवन. हाय वेरोनिका. So I seriously remember कि उस टाइम पे हम लोग इंटरनेशनल कॉल सेंटर एक्सेंट मार के यूएस क्लाइंट्स or British clients. Hi, is this Samuel I'm talking to? Yeah, hi, this is Veronica Parker calling from Texas. We have a brand new plan for you, and I'm gonna give you 5 CDs for the price of 15. Oh yeah, really? Tell me more about it. And then we're like, we would just need your little details of your social security number and your credit card. Credit card. That was tough to get out. Once you get that out, that was a sale. The killer insane times कि 22 साल पहले हम अमेरिकन्स को उन्हीं के नकली एक्सेंट इंडियन नकली एक्सेंट से हम उनको फोन कर रहे हैं एंड उनका सोशल सिक्योरिटी नंबर मांग रहे हैं उनकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांग रहे हैं एंड जो लोग दे रहे हैं दे आर सो एक्साइटेड बिकॉज़ आवर ऑफर इज सो अनबिलीवेबल. इट इज अनबिलीवेबल. बताओ 15 सीडीज के प्राइस में आपको 5 के प्राइस में 15 सीडीज मिल रहे हैं. हम उनको सेल फोन कनेक्शंस बेच रहे हैं. मतलब देयर वाज सो मच nonsense happening. But let's start with one story which it's very interesting, which I recently got to know that your family has been a part of the IC-814 hijack. This is so interesting because you're the second person I have met who has been through this ordeal. बट मेरी उनसे जो पहले फैमिली थी मेरी कभी इंटरेक्शन नहीं हुई थी. इट वाज जस्ट लाइक अ ओ मोमेंट कि उन्होंने बताया. बट आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट में हूँ एंड आई वुड वांट टू नो कि ये क्या एक्सपीरियंस था बिकॉज़ आई डोंट थिंक यू हैव इवन शेयर्ड एनीवेयर एल्स. नहीं, मैंने बिल्कुल भी शेयर नहीं किया. रेडियो पे भी कभी शेयर नहीं किया. बहुत सारे टेलीविजन इंटरव्यूज दिए उन पे भी नहीं किया. हाल ही में एक पॉडकास्ट पे थोड़ी सी बातचीत मैंने की थी. लेकिन आप क्योंकि तुषार है एंड विद टीएम है, दिस इज आई थिंक ऑडियल से भी ज्यादा मैं कहूंगी इट वाज हेल. मतलब एक नर्क को डेफिनेशन दी जाए तो इट वाज दैट. मतलब मैं बात भी करूंगी तो मुझे अंदर से वो सारी यादें वापस आएंगी. बट नाउ आई कैन ऑनेस्टली लुक बैक एट इट एंड से एंड फील कि शायद जो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग एज मीनाक्षी हूँ, नॉट एज आरजे मीनाक्षी में भी वो स्ट्रेंथ आई, बट एज अ पर्सन जो मैं इतनी स्ट्रॉन्ग बनी हूँ क्योंकि आपने इतना बड़ा कुछ लाइफ में देख लिया. तो उसके बाद क्या रह जाता है? आप टेररिस्ट के साथ एक दिन क्या 1 घंटा बिता के देखिए, क्या बैठ सकेंगे? आप नहीं बैठ सकेंगे. हार्डकोर टेररिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दोज वर हार्डकोर टेररिस्ट जो ये करते रहते हैं. मतलब उनके लिए गोली मारना इट्स जस्ट लाइक
चाय का कप पीना, इट्स जस्ट लाइक दैट, एक और चाय हो जाए, एक और मर्डर हो जाए, सीरियसली। तो उनके साथ वो समय बिताना, इट वाज क्रिसमस ईव, 24 था, हम काठमांडू घूम के फैमिली के साथ, 1999 की बात है, तो वापस आ रहे थे एंड हम लोग बस अपनी सीट्स ली हमने जाके, और सीट्स लेने के 5 मिनट बाद ही, कुछ 5 मिनट बाद ही पूरा मंकी कैप पहने हुए 4 लोग आ गए, आगे, बिल्कुल आगे आ गए, और उन्होंने बोला योर प्लेन हैज बीन हाईजैक, और जो जहां पर है इस समय वहीं खड़ा रहे। तो मतलब हम बैठ गए थे उस समय, और काफी लोग उस समय बोर्ड कर रहे थे, बोर्ड ऑलमोस्ट बोर्डिंग कंप्लीट थी, लेकिन मतलब मुझे सेटल होने में टाइम लगता है, उतना हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, अब जहां मैं कहूंगा आप वहां पे जाएंगे। तो हमने कहा अरे मजाक कर रहा है, लाइक पापा ने भी बोला ये तो मजाक कर रहे हैं, क्रिसमस जोक है, ये क्रिसमस जोक है और कुछ नहीं है। Nobody took it, कहते हाँ ये सैंटा वैंटा लाएंगे, अभी कुछ मजाक होगा, कुछ फन होगा, और ये सब ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला सुना नहीं आपने, बहुत तेजी से बोला हमारे को, बिकॉज ही वाज नॉट टेकिंग इट, उनको थोड़ी पता था, नहीं पता था कि ये हो गया है। तो बट उन्होंने बोला कि लेडीज इस तरफ जाएंगी और जेंट्स इस तरफ, उन्होंने लेडीज जेंट्स को सारों को सेपरेट कर दिया। बट माई डैड डिड नॉट लीव अस, ही वाज लाइक कि नहीं मैं इनके साथ ही रहूंगा। तो उन्होंने बहुत तेजी से भी बोला कि नहीं, जब मैंने बोला है अलग जाएंगे, तो ही डिड नॉट गिव अप। तो हम एज अ फैमिली साथ बैठे हुए थे। बट आप ये सोचो कि हम उसके बाद, द वर्स्ट पार्ट वाज, क्योंकि हम काठमांडू से उड़ान भरी, उसके बाद क्योंकि आगे पायलट्स को बोल दिया था कि प्लेन हैज बीन हाईजैक्ड, तो अब आप यहाँ चलो, पाकिस्तान चलो, दुबई चलो, इस तरह से नेगोशिएशन, जो कि आपने अभी एक सीरीज भी आई होगी हाल ही में, तो उसमें आपने देखा होगा, तो बहुत नेगोशिएशंस चल रही थी कि यहाँ ले चलो, वहां ले चलो। तो हमारा प्लेन पूरी रात नीचे ऊपर नीचे ऊपर, एक बार लैंडिंग में हालत खस्ता हो जाती है, टेक ऑफ और लैंडिंग में, हम पूरी रात ऊपर नीचे जा रहे थे, बिकॉज वी वेंट टू अमृतसर ऑल्सो, अमृतसर से फिर दुबई उतरने की कोशिश की, बट फ्यूल खत्म होने वाला था, फिर वापस से ले जाना पड़ा, फिर वहां जाके हमें कांधार में उतारना पड़ा, तो उनको उतारना पड़ा, क्योंकि रिफ्यूलिंग करवानी थी, और कांधार वाज द ओनली प्लेस जहां उन्हें इजाजत मिली, जहां पे तालिबान का राज था। और बहुत ही मुश्किल समय था ऑनेस्टली तुषार, मतलब अभी आई कैन थिंक एंड लाफ अबाउट इट, और स्ट्रेंथ की बात हम कर सकते हैं, बट उस समय लगता है अभी गए कि अभी गए। जरा सा भी आपको पूरा टाइम जो तकिए, लाइक कुशन है, कुशन का जो कवर है, तो वो कवर, तकिए का कवर आपको अपने चेहरे पे पूरा डालना था, और ऐसे करके बैठना था पूरा टाइम, पूरी रात हम इस तरह करके बैठे हुए थे। ये तो आप अगर में कर सकता हूँ स्कूल में भी कर सकते हो, पर स्कूल वाले जो है वो आपको जो रिवॉल्वर का बट नहीं मारेंगे, अगर हम सिर जरा सा उठा रहे थे तो हमें सीधा बट पड़ता था। तो इतना डरा दिया था, खाना पीना कुछ नहीं, 2 दिन तक हमें कुछ खाना पीना नहीं दिया था। तीसरे दिन 2 days नथिंग, जीरो, नो वाटर, नो फूड, नथिंग। और तीसरे दिन उन्होंने एक फैमिली को, पर फैमिली एक ऑरेंज दिया। तो हम बिल्कुल उस समय तक एकदम वीक हो चुके थे, उन्होंने जान के ऐसा किया था कि बिकॉज दे हैड टू अगेन ओवर पावर अस, सो दैट हम मिल के कुछ उनके ऊपर अटैक नहीं कर दे। पर हर पल जान का खतरा था, बिकॉज हमेशा वो बोलते थे हैंड ग्रेनेड्स ऐसे हाथ में उठा के, बर्गर एक का नाम था, और जो सीरीज में दिखाया गया है कि हिंदू नाम थे, ऐसा हिंदू नाम नहीं था। I want to clarify because I was in the IC-81 for hijack, so ऐसे हिंदू नाम नहीं थे। तो बर्गर था, कुछ जावेद था, या ऐसे ऐसे नाम थे, बट देयर वाज नो हिंदू नेम। बट आपस में वो कम्युनिकेट करते थे, और मतलब जब भी लगता था कि कोई थोड़ा सा ठीक हो रहा है, हमें डरा देते थे। वो पूरे हैंड ग्रेनेड्स उनके हाथ में थे, वो कहते हम अभी पिन निकालेंगे यहाँ पे, अभी आप सब खत्म हो जाओगे। एंड दे वर सीरियस, उन्हें अपनी परवाह नहीं थी ना, बिल्कुल। वो तो सोच के आए थे कि हम मर सकते हैं, मरेंगे, बीच में था ऐसा कि बिल्कुल हम सब खत्म हो जाएंगे। और सबसे वर्स्ट दिन पूरे हाईजैक का 30th दिसंबर था, जब उन्होंने बोला था कि जितने भी लोग हैं सारे लाइन में खड़े हो जाओ, आयल्स में खड़े हो जाओ, जो आयल्स होती हैं। अब उन्होंने बोला कि हाथ में उनके रिवॉल्वर था और एक बड़ी पिस्टल थी। उन्होंने कहा हम पहले आदमी को गोली मारेंगे और मारना शुरू कर देंगे। आपकी सरकार ने हमारे सारे जो भी हमने उनको दिए थे, शर्तें दी थी, हम सारे के सारे रिफ्यूज कर दिए। तो अब हम गोली मारना शुरू करेंगे, पहले को गोली मारेंगे, और याद रखा जाए कि जो आखिरी बंदा है वो भी बचेगा नहीं। तो पहला मरेगा तो आखिरी वाला भी मरेगा, अपने अपने भगवान को याद कर लो। वहां हो गए थे हम, मतलब ऐसा था कि हमने सच में बहुत रोए, आपस में मिले एक दूसरे को कि अब
ठीक लास्ट है, आ गए ये। लास्ट है कि जा रहे हैं, और विद इन मतलब ये हम हमें खड़े रखा उन्होंने विद इन, मतलब आराम से आई थिंक 25 to 30 मिनट्स हम खड़े थे तुषार। तो 30 मिनट्स आप सोचो कि वेटिंग। आप वेट कर रहे हो कि गोली कब लगेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और हमें पूरा डर क्यों था, क्योंकि रुपिन कत्याल जो कि एक हमारे बीच में एक सदस्य था, हनीमून कपल थे वो, आपने देखा भी होगा डॉक्यूमेंट्री में, उसको पहले ही उन्होंने गला रेत के उसका मार दिया था। तो और 2 लोगों को घायल किया था, तो वो कर सकते थे, वो कर रहे थे हमारे सामने। They were not joking. दे वर नॉट जोकिंग, कोई मजाक नहीं था वो। तो उस समय बिल्कुल हमने आपस में एक आखिरी अलविदा कहते हैं कह दी थी। बट समहाउ उस समय मैं कहीं ना कहीं तारीफ करना चाहूंगी उस समय की गवर्नमेंट, वाजपेयी सर थे और जसवंत सर, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने पूरा आपस में, ऑपोजिशन ने भी बैठ के ये फैसला लिया कि हम सारी मांगे मानेंगे। आज बहुत लोग कहते हैं गलत किया, बट देखो मेरे से पूछोगे तो, या कोई भी जो उस प्लेन के अंदर पैसेंजर्स थे उनसे पूछोगे तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं थी कि उन्होंने वो डिसीजन लिया जो कि गवर्नमेंट ने लिया। तो हम जब लाइन में खड़े थे तो उन्होंने बोला आपकी गवर्नमेंट ने आपकी सारी डिमांड्स मांग ली है और अब आप फ्री हो, यू आर फ्री टू गो। हमें यकीन ही नहीं हुआ 2 सेकंड कि ये हो क्या रहा है, रियली ये मजाक कर रहे हैं। फिर नहीं, अब 7 दिन हो गए हमें यहाँ पड़े पड़े प्लेन में, खाना पीना नहीं, टॉयलेट्स जो है ओवरफ्लोइंग है। आप सोचो ना हेल कैसा हो सकता है, स्मेली होगा, खाना नहीं मिलेगा, आपको बार बार मौत का भय होगा, ये सब था वहां पे। इट वॉज कम्प्लीटली अ हेल। और उस समय वो कह रहे हैं कि हमने आपको छोड़ दिया है, तो यकीन ही नहीं हुआ। थोड़ी देर तक तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं अब ये दोबारा से कुछ करेंगे। पहले उनके आने पे यकीन नहीं हुआ, पहले आने पे, उसके बाद जाने में यकीन नहीं हुआ। सो इट वाज अ वेरी 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 टफ टाइम। इट वाज लाइक, आज भी सोचो अगर आप, तुम्हें को नाइटमेयर्स पहले तो बहुत आते थे, मतलब मैं सिनेमा हॉल में जाती थी और मुझे लगता था अचानक से क्लोज स्पेसेस, दैट्स द वर्ड। अगर मैं किसी सिनेमा हॉल में गई या फिर मैं नीचे बेसमेंट में हूँ, लिफ्ट में हूँ, मुझे लगता था अचानक से कोई आएगा और बोलेगा कि यू हैव बीन हाईजैक्ड, अब ये आप यहीं पे रहोगे, यहाँ से निकल नहीं सकते हो। तो आई कुड नॉट गो टू वॉच एनी मूवीज, नो थिएटर। थिएटर मेरा फर्स्ट लव रहा है, मैं कुछ नहीं देख सकती थी, नो प्लेस, नथिंग। इतना डर लगता था मुझे। सो या दैट वाज हेल एंड बैक। बट अब मैं सुना सकती हूँ वो रियल कहानी, कहानी भी नहीं है, Just imagine what is the date today? I have 30th December yes 2024. yes. Just 25 years from the same date you're talking about that incident. What's the date today? 30th December. Oh my god. Oh my god. Oh my god. And that this is all incidental, you know. This is crazy. God. है ना? Oh my god, I got You teary didn't eyes. realize that. I didn't realize that. Absolutely. This is 30th December of the same date you're talking about. Shucks. Oh my god. This is 25 years exactly, yeah? Exactly 25 years later. This is crazy. So ये जो सारा incident था, obviously it was very tasking on your mind. But when you reached home and everything, how was your life after that? Yeah, life was like I told. See, many of the people had to go to. उस समय अभी आज भी I think people should definitely go for therapy and if they want to talk out. That time it was like most of the people, because we had it was like a group only. We used to talk to each other through phones and all that. Landlines उस समय होती थी एंड मोबाइल्स आ रहे थे, सैटेलाइट फोन्स टाइप वो जो मोटे वाले 8 वर्गे फोन आ रहे थे, तो बात नोकियाज तो बात करते थे आपस में, बट लेकिन हर किसी के मन में वो टेरर था। हम लोग जेन्युइनली 2-3 साल उसमें से निकल नहीं पाए, मतलब 2 साल लगा, 2-3 साल। इट इज अ पेट्रिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर श्योर। मतलब मैं वही बार बार कह रही हूँ कि हमेशा मौत का डर होना। 7 दिन 24 से लेके 31 को हम वापस यहाँ पहुंचे थे, तो 24 से लेके आप 31 तक मतलब आप पूरा उनके साथ हो। Holiday season with the terrorists. Yeah. Oh, thank you for. I was like, मतलब मैं अंदर से ऐसा फील कर रही थी, but you made me laugh. Thanks, तुषार. Really, because वाकई एक डरावना एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं वो था, for sure. Let's now jump to happy parts. You know, tell me, now you are the queen of radio. Now, how did that transformation happen? मतलब आपकी पहली job, I remember seeing you in big. तो आपके shows big में शुरू हुए, तो how did you enter the world of radio and then moving to Mai, and जब आप Mai पहुंचे you were flying. So tell us more on that. Right.
सो रेडियो इज लाइक इट्स जस्ट हैपेंड बाय चांस, आई विल से. बिल्कुल रेडियो प्लान भी नहीं था. मैंने कभी रेडियो सुना भी नहीं. मैंने लाइफ में रेडियो नहीं सुना था. ये कोई अच्छी बात नहीं है. प्लीज रेडियो सुने. इट्स ब्यूटिफुल, इट्स अमेजिंग, इट्स एन एक्सपीरियंस जैसा कोई भी आपको और माध्यम नहीं देता. तो मैंने लेकिन रेडियो नहीं सुना था. मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं था. ये मेरे लिए फायदेमंद भी हुआ बिकॉज मेरा जो स्टाइल है वो बहुत ही ओरिजिनल है, कॉपीड नहीं है, किसी और जैसा नहीं है. नहीं तो आप ज्यादातर सुनते हैं आप सुन रहे हैं ये वो एक स्टाइल हो जाता है. बट मेरा स्टाइल, मतलब लोग कहते हैं कि जब वो मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं रेडियो पे भी आप ऐसे ही सुनाई देते हो और ऑफ एयर भी आप ऐसे ही होते हो. So people are copying you? Yeah, they are. So you are the Kishore Kumar? No, I'm like Darijit Singh. Oh, uncopyable. Uncopyable. Yes, absolutely. They have tried copying me, but it's a good thing. But sorry to cut you. I've seen people trying to, copy me. redo that style. I've seen that completely my style. Yeah, I've seen that. रेडियो यार, मैं तो एक्ट्रेस बनना चाहती थी. तो मुझे छोटे होते से माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी, and you've seen those actresses and you want to be, I always wanted to be like that. छोटे होते से I was enamored seeing श्रीदेवी, seeing माधुरी दीक्षित. छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग, सीक्रेट हार्ट में पढ़ती थी, तब मुझे था कि मेरे को एक्ट्रेस बनना है. छोटे छोटे प्लेज में पार्टिसिपेट करते थे एंड ऑल दैट. उसके बाद फिर पापा की बहुत ट्रांसफर्स होते थे. माय फादर वाज इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारी हर 5 साल बाद ट्रांसफर होती थी. तो आई बीन टू जयपुर, आई बीन टू सहारनपुर, रुड़की, देन ऊटी या जयपुर, many places. तो सहारनपुर में जाके I was doing my 10th in St. Mary's. So वहाँ पे एक प्ले का ऑफर आया मेरे को कि सिंहासन खाली है, उसका नाम था. इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने प्ले कराया था. उन्होंने कहा सिर्फ 2 मिनट का रोल है, लेकिन मैंने कहा मुझे करना है, जरूर करना है. सो मैंने वो 2 मिनट का रोल किया और उसमें ऐसा था कि मेरे जो है पति को महाराज लेके चले जाते हैं और उसका सिर कलम करा देते हैं और मैं रो रही हूँ और अपनी चूड़ियां तोड़ रही हूँ. और 2 मिनट का रोल था वो सिर्फ, लेकिन वो 2 मिनट का रोल, और जो लीड एक्ट्रेस थी उसका रोल था 40 मिनट्स का. तो मेरे 2 मिनट के रोल ने ओवरशैडो कर दिया और 40 मिनट के उसको. उसके बाद वहां रुड़की में, देहरादून में एक थोड़ा शोर मच गया कि कोई नई जो एक्टिंग करने वाली बंदी, एक एक्ट्रेस आई और 10th क्लास में. इमेजिन, बिकॉज वहां पे जितने भी बाकी लोग थे, एवरीवन वाज लाइक कि जिन्होंने वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मोस्ट ज्यादातर लोग जो थे. आई वाज यंगेस्ट वन. So then I started doing so many plays. I associated with National School of Drama also. We did a 6 weeks program. National School of Drama से select हुए थे और वहाँ पे सहारनपुर एंड रुड़की में कैंप लगा था. So वहाँ पे I attended. Then I did many plays. I was chosen best actress thrice in a row, 3 years. So उसके बाद तो मैं था कि मैं एक्ट्रेस ही बनना है. फिर एक प्ले था मेरा, बेबी तुम नादान, जो एक मुंबई के डायरेक्टर साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी क्योंकि बाद में चीजें गड़बड़ हो गई थी. बट वो आए और उन्होंने बोला कि मुझे आप चाहिए हो. मैंने कहा आप पापा मम्मी से बात कर लीजिए. हमारे घर आए तो पापा मम्मी पूरा राउंड टेबल डिस्कशन जैसे होती है, वो बेटी को मुंबई जाना पड़ेगा, फिल्म करनी पड़ेगी. उन्होंने फिल्म का ऑफर दे दिया सीधा और कहा कि शूटिंग उत्तराखंड से करेंगे, उसके बाद मुंबई लेके जाएंगे, वहां पे बाकी शूट है. तो मम्मी पापा ने पूरा राउंड टेबल में डिस्कस करके नहीं 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 हम नहीं भेजेंगे, हमारी बेटी एक्ट्रेस नहीं बन सकती है, इसको तो डॉक्टर, इंजीनियर या फिर आईएएस ऑफिसर या फिर एसएसपी ऐसा कुछ होना चाहिए जो इसकी पर्सनालिटी है. तो बस वहां पे वाला बच्ची बिगड़ जाएगी. तो बेसिकली ना उनका आंसर पहले ही नो था. हाँ, डिस्कशन करके राउंड नो बोलना ज्यादा मजेदार. एग्जैक्टली, we have gone through your pros and हमने सोचा था इसके बारे में, तो मना कर दिया. उसके बाद I was like quiet for some time. I was like very sad and all that. Then Papa was traveling from Jalandhar. उस समय नया नया रेडियो मिर्ची आया था, फेस 1 ऑफ रेडियो था. उधर आया था, चंडीगढ़ में नहीं था. चंडीगढ़ में नहीं था. या इट स्टार्टेड विद जलंधर. तो जलंधर में था. तो उन्होंने कोई कार्य को सुन रहे थे, तो बोल रहे थे, मुझे आके बोला कि बड़ा अच्छा बोल रही थी वो, लेकिन तू उससे ज्यादा अच्छा नॉर्मली बोल लेती है, तू कर ले. मैंने कहा क्या होता है आरजे, मुझे नहीं पता आरजे, मैंने नहीं बनना. तो कहते नहीं नहीं तू जा. देन आई देयर वाज अ इंस्टीट्यूट, हरदीप चांदपुरी सर का इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे मैंने एडमिशन लिया एंड ट्रेनिंग के लिए. इट वाज अ 4-5 months कोर्स था. आई थिंक 5 months का कोर्स था. मेरे को मुश्किल से 2 हफ्ते हुए थे. उस समय हमें पता चला कि रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं फेज 2 के चंडीगढ़ के लिए फॉर बिग एफएम.
तो देन आई वेंट टू माउंट व्यू, वहां पे 2-2,500 बंदा, इतना सारा, मैं तो वापस ही आने वाली थी, मैंने कहा क्या मुझे कौन चुनेगा यहाँ पे, एक से बढ़कर स्टार्स और थिएटर वाले तो थे, लेकिन उसके अलावा रेडियो आर्टिस्ट जो रेडियो ऑल इंडिया रेडियो कर चुके हैं या किसी और स्टेट से आए हैं जिनको रेडियो की समझ है, मुझे कुछ समझ नहीं है। उन्होंने बस बोला कि आप कुछ भी बोल दीजिए, फिल्म पे कुछ बोल दीजिए, कोई फिल्म पसंद हो। तो आई मीन इट वाज लाइक मेरी दिस थिंग वाज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मैंने उस पे कुछ बोल दिया बढ़िया सा, मुझे अच्छा लगा वो बोल दिया। तो उनके पास वो 2000 जो वॉइसेस उन्होंने रिकॉर्ड की थी उनमें से 100 बंदों को सिलेक्ट किया उन्होंने, 100 लोगों को फोन आए, मुझे कॉल आया, तो मुझे फिर अगेन लगा ये प्रैंक ही हो रहा है मेरे साथ कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। आपका प्रैंक सब जगह चल रहा है। सब जगह चल रहा है, सब कुछ जो भी हो रहा है प्रैंक समझ रहे हो, सीरियस हाईजैक भी प्रैंक समझा, सोचो हद हो गई। लेकिन उसके बाद दिस वाज अ गुड वन यार, पूरा मुझे ध्यान देना पड़ेगा कहीं सच में प्रैंक हो जाए और पता ही ना चले। हाँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, पर फिर उसका दोबारा कॉल आया कि आपको यहाँ पहुंचना है, ये फिर 100 में से 50 से 10 दिल्ली में बुलाए गए। फिर उनका फाइनल इंटरव्यू, जो भी बिग के टोटल जितने हेड्स ओवरऑल नेशनल हेड्स थे वो बैठे थे, और फिर 5 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया, उनमें से मैं थी। लीस्ट एक्सपीरियंस्ड, जीरो एक्सपीरियंस, आई वुड से नो एक्सपीरियंस इन रेडियो। मेरे साथ जो थे माशाल्लाह बहुत अच्छे आरजेस, और ऑल इंडिया रेडियो शिमला में थी सुलक्षणा, फिर पंकज पम्मू, वो उन्होंने बहुत थिएटर किया है, पहले भी रेडियो बहुत कुछ किया है उन्होंने, दिग्गज रोचक कोहली जो आज इतने तगड़े, हमारा वो बैच रहा है। और हम ट्रेनिंग करने कहाँ गए थे? आयुष्मान खुराना के पास। आयुष्मान खुराना दिल्ली बिग में मॉर्निंग आरजे थे। मैं तो ऐसे ही देखती रहती, कितना हैंडसम लड़का है यार, आरजेइंग छोड़ो, पहले मुझे ताड़ने दो। तो हमारी ट्रेनिंग आयुष्मान खुराना के अंडर हुई लिटरली। He was the top RJ there, है ना, मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान, that time आयुष्मान खुराना used to say that। तो and he was fabulous, out of the world, मतलब जितने प्यारे वो मैं कहूँगी एक्टर है, उससे भी ज्यादा प्यारे वो इंसान है। बहुत प्यार से उन्होंने हमें सिखाया। और फिर हम वापस आए अगेन, जैसे मैंने कहा कि आई वाज लीस्ट एक्सपीरियंस, तो मेरी कोई से नहीं थी, बाकी आरजेस की से ज्यादा थी, वो उनको एक्सपीरियंस है एंड ऑल था। मुझे बोला कि मैं बोल रही थी मुझे तो मॉर्निंग शो करना है, पूछे क्या करना चाहते हो? मॉर्निंग शो करूंगी, मेरी एनर्जी बहुत अलग है एंड ऑल दैट है, फन एंड आई एम बबली, वाइवेशियस, इंटेलिजेंट आल्सो, सो मैं मॉर्निंग शो करूंगी। तो उन्होंने बोला नहीं, मॉर्निंग शो के लिए आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं और आपकी आवाज थोड़ी हस्की सी है, अच्छी सी है, आप नाइट शो करो। मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन आके बोलते हैं कि नाइट शो के लिए मीनाक्षी नाम इज द वेरी ऑर्थोडॉक्स, ऐसा मतलब मद्रासी नाम टाइप लगता है, और वहां पर मीनाक्षी टेम्पल, तो कहते हैं वो, हाँ, मीनाक्षी शेषाद्री। और नाइट शो जो हम सोच रहे हैं दैट्स अ लिटिल एजी शो, इट्स लाइक लव शव वाला, डेटिंग वाला, तो उसमें मीनाक्षी नाम नहीं जाएगा, तो आप अपना नाम बदल के डॉली रख लो या एंजल, इन दोनों में से कोई रख लो। मैंने कहा 2 सेकंड के लिए तो मैं चुप रही, मतलब 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने कहा आप मेरा प्लीज रेजिग्नेशन लिख लो, ये ले लो, मैं ना तो डॉली हूँ ना तो एंजल हूँ, मैं मीनाक्षी हूँ। तो जैसे आपसे बात हुई थी कि डॉली के नाम से मैं डॉली रिजाइन्स। सो उन्होंने बोला नहीं अभी तो आप बिल्कुल नए हो, आपको पता है कितने लोगों में से आपको सिलेक्ट किया गया एंड यू आर रेडी टू गिव इट अप ऑल। आई सेड मैं अपना नाम ही बदल दूंगी तो मेरी आइडेंटिटी क्या है। तो तब आरजे मीनाक्षी डूइंग 9 बजे की सेटिंग, पहले तो नाम पे बड़ा था कि यार ये सब लोग सोचते थे आरजे मीनाक्षी, बट वो शो इतना पॉपुलर हुआ, इतना पॉपुलर कि आज भी लोग 9 बजे की सेटिंग जानते हैं, वरना इतना पुराना शो हो तो लोगों को नाम नहीं याद रहते। सो डॉली couldn't do, मीनाक्षी did it. Killer, it was killer. And then you moved to My. Then I moved to My because there was no particular reason I loved Big FM. There was no, it is just I wanted to try something new. वाला हो जाता है ना, एक time we all you know, yeah. And then everyone told me you're doing such, it is a blunder, ये career का सबसे बड़े वाला बड्डे वाला mistake होगा तुम्हारा, वहां पे जाना, it's going to be a mistake, क्योंकि यहाँ पे तुम established हो, both radio stations are amazing, but यहाँ तुम established हो, अब वहां जाके फिर तुम जीरो से स्टार्ट करोगी। मुझे बड़ा मजा आता है जीरो से स्टार्ट करने का, मैं बताना चाहती हूँ आपको, मुझे अच्छा लगता है, हसल है पूरा टाइम, रीइन्वेंट करते रहो, ये हिट कर दिया, वो पुराना है भाई, अब क्या करना है, नया क्या करना है। सो वो था। फिर वहां पे जाके भी नाइट शो स्टार्ट किया, और नाइट शो का नाम क्या था? ओए होए मीनाक्षी। मतलब आप सोच सकते हैं, पहले तो आरजे मीनाक्षी का नाम 9 बजे की सेटिंग या नाइट शो के साथ जम जाना, उसके बाद शो का नाम रखा ओए होए मीनाक्षी। और वहां पे लोगों को मैं बोलती थी आपने जब कॉल करना है तो कॉल करके हेलो नहीं बोलना ना, हाय बोलना है, ओए होए। So it was like, hi, this is Tushar, ओए होए। So people are actually, that was the call segment.
So people are actually doing ओए होए, it was crazy. And नाइट शो किया, टांका फिट, उसमें एक सेगमेंट होता था, बड़े लोगों के टांके फिट किए हैं, बड़े लोगों की कन्फेशन सुनी है, सो टांका फिट एंड कन्फेशंस था, एंड वो शो भी बहुत सुपर हिट हुआ, पर मैं 4 साल बाद 3 साल बाद फिर बोर हो गई. तो आपने अभी दिलजीत को नहीं बोला कि पंजाबी आगे ओए नहीं बोलना, पंजाबी आगे ओए होए? ओह थैंक यू. तो मैंने वो यार तुसी मैंने टैगलाइन दे दी, मैं कहांगी मीनाक्षी आ गई ओए होए, ये कहते हैं है ना. थैंक यू. न्यू टैगलाइन, लवली. So then your journey with then my started, and then but when जैसे बोर हो गई, जैसे मैंने कहा जल्दी से मुझे कुछ नया चाहिए होता है, तो फिर मुझे फिर मॉर्निंग शो अगेन, दैट वाज लाइक नाइट से मॉर्निंग में जाना, इट्स कम्प्लीटली, इट्स अ हाराकिरी, प्रोफेशनल हाराकिरी. या इट इज, कोई भी नहीं हुआ ऐसा कि जो नाइट से मॉर्निंग में गया और हिट हुआ हो. कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है मेरे पीछे, कोई प्रीडिसेसर्स आरजेस ने किसी ने करा हो, नहीं किया है. मॉर्निंग में तो मॉर्निंग में हिट है, नाइट है तो नाइट में. पर मैंने मॉर्निंग में किया, टचवुड उसी शो के कारण मुझे इंडिया की नंबर 1 आरजे का अवार्ड मिला, जिसके कारण मुझे स्विट्जरलैंड में भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, ज्यूरिक में. एंड वहां पे आउट ऑफ 47 कंट्रीज भी हमारा शो नंबर 1 है. Wow. So that was a one more interesting fact I think people hardly know about. You've interviewed all the stars. Yeah. All the stars. All the stars. Except marking 1 or 2. Matlab everyone. How has this experience been to you? Oh my God, I can't even tell you. It's such a nourishing and such a, I mean, it's a humbling experience. क्योंकि आप यहाँ पे हो जो स्टार हो, पर आप किन से मिल रहे हो? आप अभिषेक बच्चन से मिल रहे हो, कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, ओमपुरी साहब, मतलब ऐसे ऐसे दिग्गज जो अपने एक्टिंग में, ओमपुरी साहब का मुकाबला कौन कर सकता है, बिल्कुल ही अलग. उसके बाद माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान, मेरी जान. उनको मैंने 3 बार इंटरव्यू किया है, और एक बार तो ऐसा इंटरव्यू किया कि उनके पास जाके डाइनिंग, जैसे मैं बैठी हूँ ना, तो ऐसे हाथ पकड़ो जरा मेरा, ये शाहरुख खान और मैं ऐसे हाथ पकड़ के 5 मिनट तक बैठे, मैंने छोड़ा नहीं. यूजुअली ऐसे ही होते हैं, 2-3 हाथ धोया भी नहीं है. नहीं बिल्कुल नहीं, कतई नहीं. क्या करना धो के यार. खुशबू उनकी तो बहुत ही, आई थिंक बारिंग अमिताभ बच्चन साहब, ऐश्वर्या राय, आई थिंक आई इंटरव्यूड एवरीवन. सबको इंटरव्यू कर लिया, कोई नहीं छोड़ा. दिलजीत, एवरीबडी. यहाँ से कोई स्टार की अगर हम बात करें, या इवन आई मीन मुझे लगता है कि ब्रैड पिट मेरा एक ड्रीम है उनको करना, बट अभी आई थिंक सिर्फ वही रह गए हैं, यही 2-3 स्टार्स. सारे स्टार्स मैंने किए, एंड हर एक से आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है कि वो वहां पे पहुंचे तो कैसे पहुंचे. लाइक कटरीना कैफ इज शी इज सच अ हार्ड वर्कर. वो कहती है 24 में से अगर 28 घंटे भी मुझे काम करना पड़े, आई विल कीप ऑन डूइंग. दैट्स द काइंड ऑफ हार्ड वर्क शी पुट्स ऑन. People do it with passion, ना? They are a lot of it. तो मुझे एक बात बताओ, ये why Aishwarya and Amitabh Bachchan sir have been denied your company? Are they from the same family or why? No, I'm just wanting to shaft the rumors जो आजकल चल रही हैं, इसीलिए मैं वेट कर रही थी कि एक करके, और मुझे लग रहा था कि अभी जैसे अब मामला कुछ ज्यादा गर्मा रहा है, तो अब मुझे इंटरव्यू करना चाहिए. तो अब now they will be ready. अब now they will be ready. अब मैं पूछूंगी कि क्या चल रहा है. Killer. Yeah. Any future plans you want to show? Future plans, I mean, I'm a person who goes with the flow. So I really don't have any कि plan, क्योंकि मुझे बिना प्लान के ही हुआ है जो भी लाइफ में हुआ है. So I really believe कि आप मेहनत अपनी करते रहो. So whatever I do, even if you'll tell me ना मीनाक्षी कप चाय बना दे, so I will put my 2000% in it. तो मेरे लिए उस समय चाय बनाना ही मेन चीज है. I live just in the moment. I do not know. मुझे पता नहीं है, मुझे 1 घंटे बाद मैं क्या करूंगी मुझे नहीं पता है. मतलब आज बंद में ऐसा था कि मुझे कुछ भी हो, मुझे तुषार से मिलना है, मुझे यहाँ आना है. आई जस्ट लव योर पॉडकास्ट बाय द वे, बिकॉज इट इज, मैं रियली आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी. मैंने इतने सारे पॉडकास्ट देखे हैं, एंड आई एम ऑल्सो रेडियो पर्सन, एंड आई कीप ऑन इंटरव्यूइंग पीपल. द ईज विद विच यू इंटरव्यू पीपल, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अब मैं, ऐसा लग रहा है अपने दोस्त के साथ बैठे हो. हाँ, तो वो इतना ईज होता है, इतना फ्लो होता है आपकी कॉन्वर्सेशंस में, कि वो टिपिकल पॉडकास्ट नहीं, ऐसा लगता है कॉन्वर्सेशंस विद तुषार. Thank you. It's beautiful. The idea is, to build understanding, bonding, and इतनी चीजें फिर जानने को मिलती है ना, which is a learning for everyone to take back. So इतनी resilience आपसे, मतलब ये जो 814 वाला आपने ये बताया है, for the first time I am listening for somebody directly. And जो हम देखते हैं, सुनते हैं न्यूज में, टीवी में, मूवीज में, those are very different. Yeah. Because,
इवन जो डॉक्यूमेंट्री आई थी हाँ। उसमें पूरी तरह से नहीं दिखाया उन्होंने कि हमें कितना डराया गया था, हम्म, और ना हैंड ग्रेनेड्स दिखाए थे कि 2-2 मिनट में निकाल के हमें बोलते थे कि हम अभी हम ब्लास्ट कर देंगे। और हमारी जो कवर्स उन्होंने, जो मैंने बताया कि कुशन कवर्स जो आपके पिलो कवर्स डाले थे सिर पे, तो बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई। वो टेरर वो कैप्चर ही नहीं कर सकते जो हमने नहीं कर महसूस सकते. किया। Some things cannot be Cannot be, replicated. yeah. They can only be imagined. They can be but imagined, and it's or not they can be experienced. interviewed But still, first मतलब hand. जो आपने experience किया होगा, नहीं, I can only हाँ. imagine like 1%. Yeah, I 1% is can't also, feel that, yeah, that yeah. 7 days कभी ना फील करो आप. हाँ. आपकी नेक्स्ट फ्लाइट कब है? है. अच्छा किया नहीं बताया मुझे. उतरेगी. नहीं उतरेगी. Oh God. इंडिया में ही उतरेगी. इंडिया में उतरेगी. डेस्टिनेशन पे. मेरे पापा बड़े मजे लगाते हैं, कहते हैं देखा तुम्हारे को बैठे बैठे हमने दुबई भी घुमा दिया था, कंधार भी घुमा दिया था. What a trip. मैं व्हाट अ ट्रिप, मुझे ऐसी ट्रिप नहीं चाहिए. Our parents also, they find jovialness Yes, in situations yeah. just to calm us. It's important. It's very important, yeah. But you know why? मैं आपको एक चीज I would want to tell you as a confession. Whenever I see this movie ना, लगे रहो मुन्ना भाई. अच्छा. You remember Vidya हाँ Balan? हाँ विद्या बालन. I always think that the only person who could have done justice to that role would have been you. Oh, that's And so sweet. आज पता चला That's you so wanted to be an sweet. actress also. I wanted to be. उनको for पता sure. होता they would have had you. हाय फिर मैं बोलती गुड वाला मॉर्निंग मुंबई. Beautiful. एंड तुषार आप मानेंगे कितने सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें हेलो नहीं लिखते एक दूसरे को, हाँ. बर्थडे वाला हेलो बोलते हैं. हाँ. और कल ही मैं जब शो कर रही थी अपना लक्स हाँ. लाउंज वीकेंड शो जो आता है मेरा, तो उसमें मैं वो कहते हैं हम मॉर्निंग नहीं बोलते एक दूसरे को, हम सिर्फ गुड वाला मॉर्निंग ही बोलते हैं. It has become such a it has become that keyword या क्या भी बोलते हैं से lingo या lingo, कुछ yeah, भी कुछ भी my slang. slang. Yeah. बर्थडे वाला, गुड वाला, It is- हैप्पी वाला बर्थडे. It is so attractive and Yeah. क्या कहते हैं उसे कैची. catchy. It's catchy हाँ, for sure. yeah. मैं ही कोई बोल रहा तो मुझे ही लगता है हैप्पी वाला बर्थडे, हाँ. मेरे मुंह से ही निकलता है हैप्पी वाला क्योंकि बर्थडे. इसमें vibe है. Vibe. इसमें एक fun है, अपनापन है, बड़ा कुछ है. जो टीएम में वाइब है. Thank you. Thank you. So, how my last question to you is, radio is always has been exciting. Yeah. What do you see? How has it changed in the landscape in the last few years? Because the attention span of people Yeah. have moved to reels. Yeah. तो रेडियो में ऐसा अभी क्या पावर है जो रील्स को भी हिला सकता है? एनीथिंग? Yeah, I know. बहुत लोग कहते हैं कि यार रेडियो में अब इतना कंपटीशन हो गया. अगर हम स्पॉटिफाई की बात करें, गाना की बात करें, सो मेनी म्यूजिक पोर्टल्स एंड ऑफ कोर्स रील्स. मुझे लगता है रील्स तो सबका मतलब सबको Yeah. कंपटीशन जो देने वाला है वो एक रील्स है. Yeah. ये चीज Yeah. आती ही Yeah, रील्स है. yeah, ये हमारा जो स्टेप आया ना ये हाँ. लाइफ में, ये सिर्फ रील्स की वजह से है, वरना हम ऐसे थोड़ा ना करते थे कभी. पहले ये रीजन सिखा दिया, बाकी आधे लोग टिंडर पे ये कर रहे हैं. That was a good one. That was a really good one. Left या right? मुझे नहीं पता. You can search, I'm not there. I will. Yes, I'm also not there. Don't need to be. But रेडियो मुझे लगता है लोग कहते हैं कि रेडियो का शायद क्या कुछ कम हुआ है. बड़ी बार ये इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता है कि रेडियो क्या पहले से कम हुआ है. रेडियो की जो वैल्यू है या जो उसका स्थान है, जो पोजीशन है, मुझे लगता है कि वो कभी बदल नहीं सकती. ये मैं दिल से कहती हूँ. रेडियो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा. हमें तुमसे प्यार था, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, वैसे वाला. बिकॉज अगर हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से बात कर लें तो चर्चिल साहब अपने सारे जितने भी जब वो ऐलान करते थे कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से हम ये करने वाले हैं, ये राहत यहाँ पहुंचा रहे हैं, ये यहाँ पे काम रहे ताकि जनता एकदम पर्टर्ब ना हो, वो सारे मैसेजेस रेडियो के थ्रू दिए जाते थे. अगर आप अभी भी बात कर लो, कहीं पे भी हरिकेन आ रहा हो तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन रेडियो पे दी जाती है. टीवी में भी आने पे टाइम लगता है, न्यूज़पेपर तो आप अगले दिन छोड़ दीजिए. रेडियो इज हियर एंड नाउ. इट इज लाइव एंड लोकल, जो कि कोई नहीं हो सकता. आगे जाके आप यहाँ से तुषार अपनी गाड़ी लेके निकले और सामने टैंकर गिरा पड़ा हो तो न्यूज़पेपर कब बताएगा? कल बताएगा जी गिरा हुआ था, बड़ी जैम हो गया. या टीवी बताएगा आपसे 2-3 घंटे बाद. रेडियो देन and there. That's the power. That's the power. Which nobody can take away. Yeah, live, local and immediate. Crisis management में सबसे पहले रेडियो is the first source जिससे immediate information दी जा सकती है कि ये प्रॉब्लम हो गया या ये होने वाला है. इसके अलावा कॉन्टिन्यूसली रेडियो में भी कंटेंट हम चेंज कर रहे हैं. जिस तरह से अब रील्स वाला है तो आपने देखा होगा कि रेडियो पे भी जिस तरह का कंटेंट है, इट इज नॉट जो पहले वाला रेडियो होता था.
they have changed, we have adapted beautifully. और जो reels वाला content है हम on air भी करने की कोशिश करते हैं, और but maintaining the जिसे कहते हैं कि realness of radio, मतलब you have to be true to radio. We can't, मैं ये नहीं कहती कि आप मुझे एक चीज बिल्कुल जो मुझे पसंद नहीं है वो ये है कि influencers are great, but radio पे radio hosts अलग हैं, influencers अलग हैं. Influencers का अपने आप, they are beautiful, they are amazing, and what work they are doing, that's amazing. But एक अगर आप एक influencer है तो ये जरूरी नहीं कि आप एक अच्छे रेडियो जॉकी होंगे. Correct. पर आप एक रेडियो जॉकी बहुत जबरदस्त है तो आप influence तो कर ही रहे हो सोसाइटी को. So वो कोई, nobody can take that away. So reels cannot take away what radio has, for sure. And also it's easily available to anyone. गड्डी में आपके म्यूजिक सिस्टम तो फिट ही होता है, तो कोई पेमेंट नहीं करनी, कोई महीने की पेमेंट नहीं करनी, कोई किश्ता नहीं भरनी है ना. Everything is easily available, so no beating to radio. Beautiful, beautiful. I'll also, give you a small insight. Because, we at My Soho, we build offices. So do you know that now big FMs, most of the offices are now running out of flex workspaces. They don't have their own studios anymore. I heard about that. Yes. Yeah. So they're running out of flex studios. Flex workspaces. Look, so like My Soho creates flex workspaces. Oh. इसका क्या मतलब है कि आपने एक furnished office में आना है. ठीक है. That's it. You get your laptop or your work. The rest, administration, facility management, upkeep, is all managed by a company. Lovely. And whenever you want to upsize, downsize your team, and accordingly you want to shift the space, that is possible. So that's why it's flex offices, and that is what the future is. Amazing. So, My Soho rocks. Yeah, and this is how we have been trying to build the company in North India now, spreading across India. Wow. So this is मतलब मैं तो ये सोच रही हूँ तुषार कि मुझे अपना ऑफिस स्पेस में सोच रही थी कि मुझे ये करने का, कुछ मुझे लोग बोलते रहते हैं, यू गॉट दिस सो मच टैलेंट, डू दिस डू दैट. तो मतलब मुझे पता है कि मेरे को अपना ऑफिस स्पेस कहाँ से चाहिए. करेक्ट. जब भी आपका कीड़ा मैच्योर हो जाए कि ये आपने करना होने वाला है बस then you know where to come. एक मैंने अमिताभ ऐश्वर्या को करना है, एक तुषार के ऑफिस पे आ जाओ. That's great, fantastic. फ्यूचर सेट हो गया. फ्यूचर प्लान पहली बार बनाया मैंने. Wow. So, but it's such a heartwarming experience for you, for me, and for coming to My Soho for today. Thank you so much, and I will always remember this date because मैं relate कर पाऊंगा अब, क्योंकि 30th December की जो आपने बात कही. You gave me. So today I will always remember this date. वाओ. मतलब मैं अभी आपने बोला, मैं बिल्कुल रियलाइज नहीं करा कि मैं उसी दिन की बात कर रही हूँ जिस समय हम खड़े हुए थे. इस समय हम लाइन लगा के खड़े हुए थे कि अब हमारी बारी आने वाली है, जयराम जी की ऊपर जाने वाले हैं हम, खत्म होने वाला है सब, ये दुनिया छोड़ रहे हैं इतने यंग एज में, और आज वही डेट है. सॉरी, एक चीज और पूछना है. वो 25 मिनट ऐसी कुछ चीज थी जो आपने सोची यार ये हो जाती या ये नहीं होती. भगवान को सबने 2 मिनट के लिए याद किया होगा. जरूर. बट कुछ आज की डेट में लोग बोलेंगे मेरी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर देना. मार दो. फोन मत देना मेरा किसी को, मेरे फोन मत देना, जला देना, दबा देना, फोन देना मत किसी को, मुझे कुछ हो जाए. ऐसा कुछ सोचा था? मैंने ऐसा सोचा था कि यार, मैं ऐसा तो नहीं सोचा था, पर एक लड़का था, एक, वैसे मैंने बहुत सारे लड़कों को, सारे लड़कों को माफी है, सब लड़कों को मैंने रैंडमली नो मारा है, मतलब कि मैंने यस बोलना ही नहीं किसी लड़के को, नो जो भी प्रपोज करेगा. पर एक लड़का था जिसको मैंने नो करके बहुत पछताई थी. तो वहां मैंने कहा था काश मैंने इससे हाँ कर दी होती तो मैं सुकून से मरती. ये था, उस लड़के को हाँ कर देती मैं, ये था लास्ट में मेरे. Thank you so much for sharing everything from your heart. And thank you for coming to My Soho. Thank you so much for having me. Such a pleasure. It was, matlab, it is just conversations, and what heartwarming conversations. Thank you. I could have only done it with you, Tushar. Thank you. Really. It's such a pleasure. Thank you. Likewise. Thank you guys.